we make other things, construction, but where are the bridges? Bridges to समझते हैं, different places would come and stay in Shantiniketan. So his first student from abroad was from Japan. And then Chinese came, English came, all over the world students came, and many great men have been produced from this very university. One more angle that I would like to place before you, it is his philosophy and theory about nationalism and internationalism. When Tagore was the peak of his experiences, achievements, Gandhiji was also there, and both of them had tremendous respect for each other. उन्होंने उनको महात्मा कहा, उन्होंने उनको कवि गुरु कहा. Many times he would come, Gandhiji would come. And once he requested Tagore that you are such a popular person in India. We are going through this independence struggle. If you come, अगर आप आएंगे, there would be thousands of people who would be following you. Because your words they follow. आपके शब्दों को फॉलो करते हैं, आप आएंगे तो चमत्कार हो जाएगा. और आप शब्द तो बहुत अच्छा बोलते हैं. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है. इसका उत्तर गुरुदेव ने दिया था. हाँ, मैं शब्दों का जाल तो बुन सकता हूँ, शब्दों से धागे तो बना सकता हूँ, पर जब आपके हाथ का जो रुई है मेरे हाथ में आएगा तो उसका तो मैं पूरा ही नुकसान कर दूंगा. Meaning thereby, it is not the ruin that he is talking about, but the patriotic feelings that Gandhiji had, or his movement that he was actually trying to bring out. As I told you that he is known to be a Mahamanav. He was an internationalist from the very beginning. He was a cosmopolitan. He was inclusive and not exclusive. और उनमें फिर से वही बात उपनिषद की कथा, जिसे हम लोग कहते हैं वसुधा एव कुटुम्बकम. पूरी वसुधा जो है हमारी कुटुंब है, हमारी फैमिली है. ये जो वसुधा वाली कुटुंब वाली का बात है, पहले तो कभी बड़ी आइडियलिस्टिक समझी जाती थी, नॉट पॉसिबल. आज इसका हाउ मच पॉपुलर इट इज. We all talk about global villages. We all talk about universal existence. We don't want to be separated from each other. अगर आप अलग हो गए तो आप नुकसान में गए. We all want to remain connected. So this concept of, and hear it, that he differed from Gandhiji. He had great, he was a great patriot, and in many other social areas also, he did a lot, especially the emancipation of women. Emancipation of women in his stories, in his literature, if you find it, and it is all there, and you will find the stories to be absolutely true. And in there also, you find he always backed and forced, compelled the women to come forward. So if you want to know Tagore, one way is to read his literature and learn from it. And the other way, maybe today, is to visit Shantiniketan. We all go to visit Malaysia, Indonesia, Europe, all these places, but we don't go to visit Shantiniketan. I would request, take it as a pilgrimage, especially the students, the enlightened class, the people in the education line. Go and see the type of atmosphere that can still exist.
Thank you again for giving me this opportunity to speak. And I hope, I told you that his areas are too vast to be spoken of, but yet a few maybe I have succeeded. I hope I have succeeded in enlightening you. Thank you very much. मैं अधिकारी का ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा समय अभाव के कारण मुझे देना बड़ी खुशी बड़ी nicely और ऑर्गेनाइजर्स को बड़ा दुख होता है इस बात का कि हम एक बहुत अच्छे लाइव स्पीकर का समय कुछ कम करने के लिए निवेदन करते हैं। मैं चाहूँगा मातृभूमि फाउंडेशन की मिस अधिकारी से कि वो आए और मिसेस प्रोफेसर अधिकारी का सम्मान करें। She is the assistant coordinator of NBF. On behalf of NBF, she wants to thank you. अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित से 1953 को शांति निकेतन में कला का अध्ययन करते रहे। 1953 से 1988 स्थानीय आर्ट्स कॉलेज में चित्रकला के अध्यापक रहे। चित्रकला की बजट शासन के संस्कृति विभाग द्वारा सफेद सम्मान से सम्मानित हुए। खंडों में नर्मदा की पूरी परिक्रमा की, नर्मदा की विशेष कृपा है। नर्मदा पदयात्रा वृतांत की 3 पुस्तकें हिंदी और गुजराती में लिखी। दोनों ही भाषाओं में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। हिंदी पुस्तकें मध्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित हैं। ये सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृतायन पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। गुजराती पुस्तक सौंदर्यनी नदी नर्मदा साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा अकादमी से आप पुरस्कार से सम्मानित हैं। मध्य हिंदी ग्रंथ अकादमी का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सम्मान आपको प्राप्त है। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रकाश समिति हिंदी ग्रेड तिवारी स्तुति सम्मान आपको प्राप्त है। गुजरात साहित्य अकादमी का गौरव पुरस्कार और आपके द्वारा विभिन्न पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में लिखी गई, जिसमें हिंदी में सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्थ नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, गुजराती में परिक्रमा नर्मदा मैयानी, सौंदर्यनी नदी नर्मदा, स्मृति ओम शांति निकेतन, नदिया गहरी नाव पुरानी, सरोवर चली पड़िया, मराठी में सौंदर्यवती नर्मदा, उत्सव नर्मदा, स्मृति तीर शांति निकेतन, बंगला में सौंदर्य नदी नर्मदा, अमृतस्थ नर्मदा, इसका अनुवाद जो है वो तबीन भट्टाचार्य ने किया और अंग्रेजी में ये आपकी एक कृति है जिसका नाम है नर्मदा रिवर ब्यूटी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, बड़ा गौरवान्वित हूँ। हम 1968 के मॉडल स्कूल के पास आउट हैं और आप 1946 के। आमंत्रित करना चाहूँगा, आप अपने विचार करें। श्री अमृता जी शिष्य ने गुरु से पूछा, ब्रह्म क्या है? गुरु ने कहा, अन्नम ब्रह्म। और भी ब्रह्म बताए, लेकिन पहला ब्रह्म है अन्न, अन्नम ब्रह्म। और अन्न हमें कृषि से मिलता है, इसलिए मैं अपनी बात की शुरुआत कृषि से करूंगा। आज से कोई 15,000 या शायद 20,000 साल पहले मनुष्य जंगलों में रहता था और शिकार करके अपना पेट भरता था, खेती को नहीं डालता था और इसलिए उसका कोई घर भी नहीं था। जहां जहां उसको शिकार मिलता था वो उसके पीछे पीछे भागता रहता था। आखिर शिकार, अब उन दिनों जंगली जानवर का शिकार करना आमने सामने की मुठभेड़ हुआ करता था, क्योंकि उसके पास कोई औजार नहीं थे, कोई हथियार नहीं थे। आमने सामने की गुत्थम गुत्था होती थी। इसलिए ये भी संभव था कि वो स्वयं शिकार हो जाए। चिंता लगी रहती थी
कि मेरा मर्द वापस जिंदा आएगा या नहीं। और इसी चिंता में एक महिला ने, ये कोई एक महिला नहीं है, हजारों साल में हजारों महिलाओं के बाद, हजारों साल के बाद, हजारों महिलाओं की कोशिश के बाद आखिर उन्होंने देखा, खोज निकाला कि अगर एक दाना हम जमीन में बोते हैं तो उसमें से पौधा निकलता है और उसमें सैकड़ों दाने होते हैं। इस प्रकार कृषि का आविष्कार हुआ। मेरा ये निश्चित मत है कि कृषि का आविष्कार महिलाओं ने किया, स्त्रियों ने किया। इसी चिंता में से इसका आविष्कार हुआ। और जब कृषि का आविष्कार हुआ तो जंगल के अंदर तो कृषि हो नहीं सकती, उसे बाहर खुले मैदान में आना चाहिए और पानी की भी सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जंगल में से निकल के नदियों के किनारे आया। वहां पानी भी है और मैदान भी है। और एक बात और है, नदियों में मछलियां भी थी। आज में भरपूर मछलियां रहती थी। और गांव बसे, लोग साथ रहने लगे। संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, महान सभ्यताएं हैं, इनका सबका जन्म नदियों की कोख से हुआ। जितनी भी महान सभ्यताएं हैं। और खेती में 12 महीने मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। शिकार में तो यही, आप 12 महीने शिकार करते रहिए, तब वो है फुर्सत। मनुष्य के पास फुर्सत आई जो पहले नहीं थी। अब 5 तो उसने साहित्य की रचना की, संगीत की रचना की, शास्त्रों की रचना की। सज्जनों, कल्चर पहले आया, पहले एग्रीकल्चर आया और एग्रीकल्चर के बाद कल्चर आया। एग्रीकल्चर ने ही कल्चर को जन्म दिया है। इन दोनों शब्दों में एक ही धातु है, कल्ट। कल्ट का मतलब है जोतना। किसान अपना खेत जोतता है और जो विचारक है, जो सर्जक है, जो कवि है, संगीतकार, वो अपना हृदय जोतता है। उसमें से जो निकालता है वो कल्चर। एग्रीकल्चर ने कल्चर को जन्म दिया। और एक बात और हुई, वो ये हुई कि अहिंसा ने जन्म लिया। एग्रीकल्चर ने अहिंसा को जन्म दिया। देखिए, शिकार में अहिंसा संभव नहीं थी। वो तो शिकार आपका हिंसा पर ही आधारित है। मगर एग्रीकल्चर में शिकार की हिंसा की जरूरत नहीं रही, तो इसने अहिंसा को जन्म दिया, संस्कृति को जन्म दिया, अहिंसा को जन्म दिया। और जितनी भी महान संस्कृतियां नदियों के तट पर हुई है, हमारे देश की भी जो संस्कृति है वो गंगा की देन है, सिंधु की देन है, नर्मदा की देन है। अब मैं मूल विषय पर आता हूं, गुरुदेव पर। आज से कोई 250 साल पहले की बात है। एक पालकी चली जा रही है और उस पालकी में एक वृद्ध सज्जन, ऋषितुल्य, एक ऋषितुल्य सज्जन बैठे हुए हैं। चारों ओर बंजर जमीन, एक पेड़ नहीं, बंजर जमीन। पालकी चली जा रही है, क्योंकि उन दोनों रेल नहीं थी। 200 साल पहले की बात है। अचानक उस ऋषि ने देखा कि कहीं कोई पेड़ नहीं है, मगर एक जगह 2 पेड़ हैं। एक जगह 2 पेड़। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पालकी उन्होंने रोकवाई और उतर करके उन पेड़ों के नीचे जाके बैठे। उनको वहां बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तब उन्होंने पता किया ये किसकी जमीन है। वो उनके मित्र की जमीन निकली, शायद वर्तमान के राजा थे। तो
तो उन्होंने उनसे वो जमीन खरीदी और वहां पर एक भवन बनवाया और उस भवन का नाम रखा शांति निकेतन। अभी रविंद्रनाथ का जन्म नहीं हुआ, रविंद्रनाथ के जन्म के बहुत पहले की बात है। शांति निकेतन, यहाँ सभी धर्मों के लोग आएंगे और धर्म पर विचार करेंगे। अब इसके कई साल बाद, हो सकता है 30 साल बाद, 40-50 साल के बाद, रविन्द्रनाथ को के मन में आया कि जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन भारत में जिस तरह के आश्रम होते थे, जिस प्रकार के तपोवन होते थे, जिस प्रकार के गुरुकुल होते थे, मैं एक वैसा ही गुरुकुल खोलूं। और ऐसा गुरुकुल शहरों की भीड़ भाड़ में, शहरों के कोलाहल में नहीं हो सकता, ये तो कहीं प्रकृति की गोद में ही हो सकता है। तब उनको उस जमीन का ख्याल आया जो उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ने खरीदी थी और उनसे अनुमति लेकर के 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की शुरुआत की। पहले उसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था और छोटे छोटे बच्चे, अब वहां कौन भेजेगा अपने बच्चे? तो जो 2-3 शिक्षक आए थे उनके बच्चे और गुरुदेव का खुद का बेटा रविंद्रनाथ और 2-1 और इससे से 5 छात्रों से उन्होंने शांति निकेतन की शुरुआत की। कोई फीस नहीं ली जाती थी, किसी प्रकार की फीस नहीं, रहना खाना पहनना सब मुफ्त, कपड़े भी दिए जाते थे। और इस प्रकार धीरे धीरे शांति निकेतन का विस्तार होता गया और 1920 में छात्र आए बंगाल के बाहर से कि गुरुदेव को लगा कि इसे अब स्कूल न रख करके एक व्यापक रूप देना चाहिए और तब उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी तक वो स्कूल था बच्चों का, मगर 1920 से वो विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय हुआ। और इस बात का श्रेय गुरुदेव को जाता है कि सबसे पहले को एजुकेशन, सह शिक्षा गुरुदेव ने शुरू की शांति निकेतन में और बहुत सफल प्रयोग रहा है। इंदिरा गांधी वहां की छात्रा है शांति निकेतन की, नंदलाल बसु की, मेरे गुरु नंदलाल बसु उनकी छात्र रही, सत्यजीत रे उनके छात्र थे नंदलाल बसु। सत्यजीत रे ने लिखा है कि अगर मुझे नंदलाल बसु के चरणों में बैठकर कला की शिक्षा लेने का अवसर न मिला होता तो मैं ये फिल्म नहीं बना सकता। जो वर्ल्ड फेमस फिल्म डायरेक्टर वो ही कह रहे हैं कि नंदलाल बसु के चरणों में बैठे। इंदिरा गांधी नंदलाल बसु की छात्रा थी और अपने ड्राइंग रूम के बीचों बीच रख दिया। श्रीमती ने घबरा कर पूछा ये काहे के लिए? अरे कहना कि अब तुम देखती जाओ। और 2 दिन के बाद उल्लू पकड़ के ले आए और उसको पिंजरे में बंद किया। अब वो उल्लू हराम हो गया। अरे कहने कि तुम लोग को सौंदर्य बोध नहीं है, एस्थेटिक सेंस नहीं है, इसका कलर देखो, इसका फॉर्म देखो, इसका टेक्सचर देखो। टुकड़ा रोया। गुरुदेव ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया तो बेचारी निराश होकर के वापस आई। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे गुरुदेव इनके घर पहुंच गए और सीधे जाके पिंजरे के सामने खड़े हो गए। किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, उल्लू को देख रहे हैं। सौमेंद्र काका आए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। काका कुछ बोल नहीं रहे हैं। खूब घूर करके देखा और फिर फौजी अदा से राइट अबाउट टर्न होकर के बाहर। अब ये पीछे पीछे फाटक पर जाके बोले रविंद्रनाथ। इसका अंदाज हम लोग नहीं कर सकते। सीताराम शेखसरिया से कहा
कि हिंदी पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी को रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम किसने नहीं सुना होगा, इसलिए प्रकांड हिंदी के लेखक, और उनको मैं केवल 60 रुपए तनख्वाह देता हूँ, इससे ज्यादा दे नहीं सकता हूँ। और वो भी मुझे बनारस के बाबू काशी प्रसाद गुप्त भेजते हैं, वो पैसे भी। अब उन्होंने लिखा है मुझसे कि किन्हीं कारणों से मैं अब रुपया नहीं भेज पाऊंगा और मेरे पास और कोई मत है नहीं, तो मुझे हजारी प्रसाद जी को की छुट्टी करना पड़ेगी। 60 रुपए इनकी तनख्वाह क्या थी नंदलाल बसु, 60 रुपए, जबकि आर्ट कॉलेज, कलकत्ता आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज में उनको 1500 की तनख्वाह से बुलाया, 1500। वो वहां नहीं गए, वो यहाँ 60 रुपए में। गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व था, उनका ऐसा आभा मंडल था कि लोग उनके साथ रहना पसंद करते थे। तो सीताराम जी ने कहा नहीं, आप उनको छुट्टी नहीं करेंगे, वो पैसा मैं भेजा करूंगा। और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा हिंदी भवन भी बनवा दिया शांति निकेतन में। इस मुश्किल से उन्होंने पत्नी के गहने बेच करके, और ये 60 रुपए भी एक साथ नहीं मिलते थे, कभी 30 रुपए मिले, फिर 10 दिन के बाद 10 रुपए मिले, इस तरह से। मगर गुरुदेव के कारण लोग 1500 की तनख्वाह छोड़ करके 60 रुपए पे काम करते थे। ऐसे ऐसे ऋषि तुल्य हमारे गुरु थे। मुझे वहां 5 साल तक पढ़ने का अवसर मिला। मेरे कई पूर्व जन्मों के पुण्य का फल होगा कि मुझे शांति निकेतन में 5 साल तक पढ़ने का अवसर मिला। और सज्जनों, अपनी पढ़ाई पूरी करके जब मैं घर आने लगा तो अपने गुरु आचार्य नंदलाल बसु की आशीर्वाद ले लिया, चरण स्पर्श करके बैठा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन में सफल मत होना। मैं चौंका, कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन में सफल मत होना। फिर कहने लगे, सफल होने वाले लोगों की कमी नहीं है, आए दिन अखबारों की सुर्खियों में उनके नाम और उनके फोटो छपते रहते हैं, उनकी कमी नहीं है। अपना जीवन सार्थक करना, अपना जीवन सार्थक करना। गुरु का ये वाक्य यहाँ शिलालेख की तरह लिख गया, और इसी एक वाक्य ने नर्मदा तट पर 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करवा दी। सार्थक तो नहीं कर सका, मगर वैसा करने की मैंने ईमानदार कोशिश जरूर की है। और जब 2002 में मुझे 75वां साल लगा, अभी मैं 84 का हूं, तो मैंने नर्मदा की पदयात्रा पुनः शुरू कर दी। आज नर्मदा जयंती भी है, थोड़ी सी नर्मदा की बात करूंगा तो उचित ही होगा। गुरुदेव को इस बात का रंज रहा आखिर तक कि शांति निकेतन में कोई नदी नहीं है। वो तो पद्मा तट पर बड़े हुए थे, पद्मा को तैरते इस पार उस पार जाते थे, नदी से बड़ा लगाव था। तो उनको इस बात का रंज रहा कि शांति निकेतन के पास कोई नदी नहीं है। बाद में, बहुत बाद में एक लहर वहां से जरूर आई और इसकी आशय पूर्ति हो गई। तो 2002 में जब 75वां साल लगा तो मैंने दोबारा यात्रा शुरू कर दी। उसमें मेरी पत्नी भी साथ रही। नर्मदा की परिक्रमा करते करते हमने उसकी सहायक नदियों की भी परिक्रमा शुरू कर दी। बोलनेर की बात है, ये बेचाचक से निकली है। घनघोर जंगल, शाल के घनघोर जंगल और पहाड़, इतना सुंदर इलाका, नर्मदा से भी ज्यादा सुंदर। उसकी एक घटना, एक पहाड़ उतर के हम लोग उतरे थे, एक छोटा सा नाला है, जरा सा पानी था। अब हम लोग 6-7 लोग थे, मगर देखिए ये हर समय संभव नहीं होता कि आप सब लोग एक साथ चले। कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो सकरी पगडंडी होती है आगे पीछे। तो मैं वो नाला पार कर गया
मगर दुर्भाग्य से मेरी पत्नी जब वहां आई तो उसका पैर एक ऐसी जगह में धंस गया जहां ऊपर तो सूखी जमीन थी लेकिन नीचे कीचड़ था और वो पैर धंसता ही चला जाए। अब हम आगे निकल गए थे, वो अकेली थी, अच्छा घना जंगल, सघन वन, और उसका पैर जैसे नदी उसको खींच रही है पैर को, वो अकेली बहुत डर गई और डर के बारे में कुछ चिल्लाई। मैं कुछ ज्यादा दूर नहीं था, मैं दौड़ के आ गया और भी साथी आ गए, उसको सहारा दिया। पहले उसने अपनी लाठी निकाली, उसके बाद पैर निकाला। अभी तक वो भयभीत थी, अब क्रोधित, और वो जब क्रोधित हुई तो मैं भयभीत हुआ। आत्मरक्षा में एक शब्द नहीं बोला, क्षमा ही मांगता रहा। हालांकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, हे सर्वव्यापी, तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। सज्जनों, भले ही वाल्मीकि ने न लिखा हो, भले ही तुलसी ने न लिखा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि 14 बरस के वनवास में एक बार भी प्रभु श्री राम को सीता जी की डाल न खाली कर। ये कोई अमूर्त कल्पना नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। फिर हम लोग नेमावर पहुंचे, ये नर्मदा का नाभि स्थान। तो वहां पहली यात्रा में मैं एक नानी के घर रुका था। एक गरीब महिला, उसकी बेटी शारदा बहन और शारदा बहन की 2 बेटियां अलका और सुशीला, बड़े प्रेम से रखा उन लोगों ने, ना किसी जान पहचान के। 2 दिन रहा वहां। अब दोबारा गए तो मैंने अपनी पत्नी को वो सारे नाम बता रखी थी, इसलिए जाके नानी के सामने सब नाम दिए। अरे तुम तो घर की छोरी है, अब कहीं नहीं जाना है, यहीं रहोगे। फिर मैं पहुंचा तो मुझे तुरंत पहचान गए। उनकी बेटी शारदा बहन ने कहा कि अलका और सुशीला की शादियां हो गई हैं और दोनों अपने अपने घरों में सुखी है, मैं मुंबई से आपकी बात सुशीला से करवाती हूँ। तो सुशीला ने कहा कि मुझे खूब अच्छे से याद है, आप हमारे घर रुके थे, आप स्केच करते थे और आपकी किताब भी हमने पढ़ी है, आपने खूब अच्छा लिखा हम लोगों के बारे में, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने कहा मेरी पत्नी भी साथ आई हुई है। उसने कहा मैं माता जी को भी प्रणाम करती हूँ। मैंने नानी से कहा कि नानी, आपकी नातिनों के संस्कार कितने अच्छे हैं कि मुझे तो प्रणाम करे ही, मेरी पत्नी को भी, जिसको उसने देखा तक नहीं है, उसको भी प्रणाम करे। नानी ने अद्भुत बात कहा। नानी ने कहा नर्मदा की नहाई छोरी है, संस्कार अच्छे कैसे नहीं होंगे। नर्मदा की नहाई छोरी है, संस्कार अच्छे कैसे नहीं होंगे। ये है नर्मदा। होशंगाबाद में मैं टहलने निकला था शाम के समय, तो एक काशी ने वहां कछार लगा रखा था, उसमें ककड़ी और खरबूजे लगा रखे थे, छोटी सी एक कच्ची सी झोपड़ी भी थी। मैंने कहा तुम रात को कहां सोते हो? उसने कहा भगवती की गोद में। भगवती की गोद में, नदी की गोद में नहीं कहा, नर्मदा की गोद में भी नहीं कहा, भगवती की गोद में। यह है संस्कार, यह है संस्कृति। हमारे पास सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, कल्चर तो उनके पास है। सभ्यता अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है। आज ये संस्कृति आज भी ग्रामीणों में बची हुई है। एक और बात कहूंगी, ये बंजर की परिक्रमा की हमने, जो कहना में से बहती है, तो हम लोग कोल जंगल के कोल जोन से निकल करके बफर जोन में आ गए थे। और वहां जंगल में हम ऐसा भटक गए कि 9 बजे जहां घुसे, दोपहर को 2 बजे ठीक वहीं से बाहर निकले, एक कोल्हू के बैल की तरह वहीं आ गए। रात को एक गांव पहुंचे, एक आदमी
खुद होकर के अपने घर ले गया, चाहे मेरा घर छोटा है लेकिन आपको असुविधा नहीं होने दूंगा। हम लोग जब है 9 लोग, उसमें हमारे भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दीप्ति भी थी, तो उसकी पत्नी अपने दो छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। रात के अंधेरे में 9 अजनबी लोगों को उसने नाक भौं नहीं से तोड़ी, हंस करके स्वागत किया। तो दीप्ति ने कहा कि हम लोग तो बिन बुलाए मेहमान हैं। जानते हैं उस ग्रामीण औरत ने, उस अपर औरत ने क्या कहा? बिन बुलाए मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, बिन बुलाए मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। यह है संस्कृति। गुरुदेव जिसके वाहक रहे, उस संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं। आज शहर में रात को 9 बजे कोई अजनबी किसी के घर में जाएंगे तो वो तो उसके ऊपर अपना कुत्ता छोड़े, क्योंकि हमारे पास सभ्यता, सिविलाइजेशन, ये बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े एयरपोर्ट, ये सब सभ्यता है, मगर संस्कृति ये अपर लोगों के पास है। हम लोगों को सभ्य बने रहने के लिए बीच बीच में इन असभ्य लोगों के पास जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं माननीय बेगम साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी शुरुआती विचारों से मेरे विद्यार्थियों के मन में क्या विचार आ रहे होंगे कुछ अंदाज नहीं कर सकता मैं, परंतु जिस तरह से उन्होंने बांध लिया देख के भी सकने की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं अपने अंतर्मन से, हृदय से माननीय बेगम साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपने विचार एग्रीकल्चर पहले आया, एग्रीकल्चर बाद में आया से लेके नर्मदा की महिमा की जो बात आपने कही है, जिस सहजता से बात कही है, वो सबको इन्वॉल्व कर दिया आपने अपने आप में, और जो व्याख्या आपने संस्कृति और सभ्यता की है, मुझे लगता है मेरे विद्यार्थियों के अंतर्मन में जीवन भर रहेगी। और मेरे सौभाग्य है, मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर सिस्टोमा साहब से कि वो आदरणीय बेगम साहब का सम्मान करें। जब वो क्रोधित होती है तो मैं भयभीत हो मानिए से ये मानिए बेगम जी का विषय आप कह रही कोई समय नहीं, मैं कहता हूँ ये उपयुक्त समय है। हम लोग क्या मैं मायके गई हुई थी और वहाँ पर का फोन आया कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, मम्मी ने तुमको बुलाया है और तुमको हमारा परिचय देना है तो तुम दोगी। तो मैं समझी कि परिचय बोल रहे तो मैं समय दे दूंगी। मेरे को ये नहीं मालूम कि बड़ी सभा है, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, मैं दे दूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ के जो सभ्य थे उनका फोन आया, दादा बहन आप इनका परिचय दीजिए। बोले नहीं मैं नहीं दिलवाऊंगी। तो बोले नहीं आपका नाम हो गया है, आपको देना पड़ेगा। तो थोड़ी मुझसे चुपचाप रही, मैं बोले अच्छा ठीक दे दूंगी। अब जब परिचय देने का समय आया क्या मैं बोलूँ, तो मैंने बताया इनसे कि थोड़े दिन से वेगर जी मेरे से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कभी नाराज भी नहीं हो रहे हैं, कोई बात को मना भी नहीं बोल रहे। क्यों भाई इतना क्या बात हो गई कि ये तो आश्चर्य की बात है कि कुछ बात से डांटनी पड़ रही है। फिर उनका जब फोन आया मेरे को आपको इनके ऊपर बोलना है तो मैं समझ गई उनके कहने से कि मेरा परिचय भी नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है।
परिचय मैंने ये दिया कि पहले मैं शुरुआत अपनी सगाई से करूंगी। ये अब बच्चों आप लोग भी सुनिए कि लड़की देखने कैसे जाती है। ये मुझे देखने पाए, अब उस समय शांति निकेतन का पानी चढ़ा हुआ था उसको। और उस जमाने में तो ऐसा है ना कि लड़की को भागे तो करते नहीं थे। अब लड़का देखने आता है तो लड़की चाय या शरबत लेके जाती है, वो चाय शरबत लेके चली आती है, तो बातचीत नहीं होती है। ऐसे मैं भी शरबत लेके गई, चाय तो पीते नहीं थे तो शरबत लेके गई। तो मैंने तो आँख तो हमारी नीचे ही रहती है, कहीं किसी को देखने का सवाल ही नहीं आता। तो मेरी नजर उनके पाँव पर पड़ी, तो उसके पाँव में वो सस्ते काले रबड़ के जूते और 1.5 बित्ता ऊंचा उसका पायजामा। मैंने कहा एक कैसा पोशाक बहुत मोटी खादी के उसने कुर्ता पहना और मेरी आँख थोड़ी और ऊपर गई, मुझे चेहरा कैसा है तो देखा हजामत को बड़ी हुई है और मोटे चश्मा पहने हुए। ये लड़की देखने आया है ये लड़का, और इसको सामने ऐसे लड़की देखने आती है। तो मेरे को उनकी पोशाक मेरे को उसका पसंद है। मैंने कहा ये क्या है इनका पोशाक पहन के कैसा लगता है। तो मेरे को तो उनका पोशाक पसंद नहीं है, पर उनको तो मैं ही पसंद नहीं आई। वो अपने पिताजी के साथ वापस चले गए। हमने ठीक है जाने दो। 8 दिन नहीं हुए तो वो वापस आए। तो कहाँ गए थे, वो लड़की देखने गए थे। देखिए उसमें 6-7 लड़कियां कहीं देखी होगी। लड़की ने उसको पसंद नहीं किया या उसने लड़की को पसंद नहीं किया, वो कोई जाए। और आए हमारे यहाँ और हमारी सगाई हुई। इस तरह से हमारी सगाई हुई और शादी हुई। मेरी शादी हो तो मैं यहाँ पर आई। तो 8 दिन नहीं हुए थे मेरी शादी को। उनके मित्र रामनोर सिन्हा, उनके हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। तो रात को भोजन था, तो शाम को घर से हम लोग निकले। बोले कितने दूर घर है, तो बोले पास में ही है। तो पैदल गए, तो पैदल गए 1.5 किलोमीटर चली होंगी मैं। तो मेरे को लगा कि घर में यहाँ कितना दूर है, तो बोले पास में ही आ गए और 1.5 किलोमीटर उनके घर पहुँचे। खाना खाया, अंधेरा हो गया था। तो लौटते समय मेरे को लगा शायद अब रिक्शा करेंगे, उसमें ऑटो तो था नहीं, साइकिल रिक्शा कहते लोगों में। तो रिक्शा करेंगे तो क्यों रिक्शा करेंगी, तो मेरे को पैदल चलाए घर, पैदल ही लेके आए घर। 6 किलोमीटर उसने मेरे को चलाया। शादी को 8 ही दिन हुए। बाग बगीचे में ले जाने की बात तो अलग पैदल चलाया। मैं थक गई, थोड़ी नाराज भी तो क्या करूँ, पर उस समय पता नहीं था मेरे को ये पैदल चली हूँ तो इसमें क्या संकेत है। उस पैदल चलने का संकेत ये नर्मदा परिक्रमा में मिली। ये नर्मदा परिक्रमा का पाथर मेरे को उसी में मिला कि जो मैं 8 दिन शादी की थी। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें मैंने सुनाई और मैंने कहा कि जैसे भी है तो मेरे वो इनको ना एक लाइट बंद करने का बहुत शौक है। कोई मेहमान आए होंगे, अभी बाहर निकले होंगे तो लाइट और पंखा बंद कर दिया तुरंत। तो एक बार मेरी छोटी बहन आई मेरे यहाँ, तो कुछ कर रही थी, उसने लाइट बंद कर दिया। उसको नहीं मालूम था वहाँ बैठी है करके। ऐसे 1-2 बार बन गया मुझे। तो मेरी बहन ने तो कहती कि दीदी क्यों, तो बोली एक लालटेन मेरे को रख देना। मुझे लालटेन को क्या करोगी, तो मेरे गले में बांधूंगी। मैं गले में क्यों बांधूंगी, तो बोले जीजा जी बार-बार लाइट बंद कर देते हैं, मैं एक दिन पढ़ूँ, मेरे गाँव में प्लास्टर आ जाए, इससे अगर तुम मेरे को लालटेन दे तो तेरे को कम करता हूँ। इस तरह से इनकी बातें ऐसी हैं। पर हमें क्या जैसे मैं है तो हमारी ऐसा लगता है कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो ईश्वर ने मुझे दिया है और जन्मों आप दोनों पानी को दीर्घायु करें। एक बात इसने नहीं बताई, छिपा के ले गई।
हम लोग जब वापस वहां गए और इसके साथ ही सगाई हुई, तो उसने वहां 300 लोग बैठे हैं भारतीय विद्या भवन बंबई में, वहां 300 लोगों से कहा कि मुझे हिंदी की एक कहावत याद आई, लौट के बुद्धू घर को आ। ये यहाँ नहीं बताया। और एक बात और नहीं बताई, उसने ये भी कहा वहां कि ये जितने सीधे साधे दिखते हैं उतने सीधे साधे हैं नहीं। ये तेरा ससुराल है, ससुराल में। तो मेरा निवेदन ये है कि इसने सही कहा, हम लौट आए थे पहली बार देख करके, क्यों कि आज 76 वर्ष की उम्र में ये जितनी सुंदर है उतनी 16 साल से नहीं है। और जब ये 80 की होगी तो इससे भी ज्यादा होगा। ऐसा इसका दिमाग उल्टा चलता है। और वो मुझे सबकी बड़ी सभा में जब उसने बुद्धू कहा, तो अगर मैं सीधा सरल न होता तो क्या उसकी इतनी हिम्मत होती? अरे मैं जितना सीधा सरल दिखता हूं उससे भी ज्यादा हूं। अपनी ओर से, ऑर्गेनाइजर की ओर से और समस्त श्रोताओं की ओर से बेगम दंपति के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे कार्यक्रम में सदैव आमंत्रित हैं। इसी तरह से निवेदन करना चाहूंगा बेगर साहब से कि बेगर साहब अगले मुखर्जी की मां सुचेता मुखर्जी को पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित करें। सुचेता जी आइए, बेगर जी आपको एक पुष्प गुच्छ भेंट करना चाहेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मिस्टर बेगर से कि वो दास जी जिन्होंने तबले की संगत दी थी उनका एक पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करें। ये करेगी अब इतनी उम्र में कुछ और तो होगा नहीं। ये इतने अच्छे क्षण है और मुझे मैं इसके पूरा श्रेय जो है वो माननीय बेगम जी को देना चाहूंगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अग्रवाल साहब ने अपना समय बेगम जी को दे दिया, क्योंकि अग्रवाल साहब का लेक्चर होना था, अग्रवाल साहब को भी 5 बजे की फ्लाइट है। इसलिए मैं समस्त श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि खाने के पश्चात पुनः यहाँ पर आए, इससे और रोचक बातें होंगी जो आपको अपने स्वयं के विकास में और आपके दीर्घ जीवन के लिए और आपके भविष्य के लिए निश्चित रूप से एक दिशा देगी। ऑर्गेनाइज करते हैं और ये भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका लेक्चर जो है नीड ऑफ जनरल सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स, इस पे लेक्चर होगा। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर एस एस तोमर हमारे एग्रीकल्चर हैं, वो टैगोर्स थॉट ऑन रूरल एजुकेशन पर बोलेंगे। तो अभी समय जो है वो 2:30 बजा है। मैं चाहूंगा कि आप किसी भी स्थिति में यहाँ पर 2:15 तक आ जाए, इससे क्योंकि की ट्रेन भी है और वापस भी जाना है, इसलिए अभी सभा का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के वाहन का इंतजाम बाहर है, सब लंच करके ही बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणी आए सर, दोनों प्राणियों में सर बाकायदा सेमर हुआ के बारे में बोला, वो क्या करते थे, एक सेंटेंस वो बोलते थे, दूसरा सेंटेंस ये भाई बोलते।